ऑल राइट दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैपटॉप पे बात करने वाले हैं। हम फुल रिव्यू लेके आए हूँ आपके लिए, कस्टमर रिव्यू। एंड ये लैपटॉप है 2021 में लॉन्च हुआ Asus ROG Strix सीरीज़ में से एक। देखो, इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 15 इंच वाले, 17 इंच वाले, यानी G15 एंड G17। तो जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है बेसिकली G17 एंड उसका टॉप एंड परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, जिसमें आपको Ryzen 9 5900HX मिलता है 16 GB रैम के साथ, 1 TB SSD, 6 GB RTX 3060। तो इस लैपटॉप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिस बंदे से मैंने बात करी है वो बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज लेके आए थे वीडियो में। एंड एक एक चीज़ का आपको पता चलेगा इस वीडियो में। इवन दो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ लैपटॉप इन दिस सीरीज़ जो कि कम रेंज में आता है, तब भी आप इस वीडियो को देखो, बिकॉज आपको ओवरऑल आइडिया तो मिल ही जाएगा कि Asus ROG Strix G17 या G15 सीरीज 2021 में है कैसी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं आपको टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड करवा दूंगा एंड इस पूरी सीरीज के लिंक्स भी आपको दे दूंगा, आप चेकआउट जरूर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल एंड गोइंग टू हेल्प सो मैनी पीपल. So before we start, I just want to have a formal introduction of you and your laptop, variant, price, everything, please. Yeah, my name is Brahmesh. A little bit about me. I have done my mechanical engineering from IIT Kanpur and currently working in one of the MNCs, let's say. The laptop I have here is Strix G17. I have still not removed the flap as well, the paper. Okay. So you can see this is the Strix. It is. I guess now you can see. Yes, we can. Yes. Okay, it will be still visible, I guess. Yeah. ROG Strix G15, 17, but this is 17-inch laptop. So this is Strix G17. Okay, so a bit of the specifications, means overall picture. Yeah. This is Ryzen 9 5900HX, so which is, to be honest, the best freaking processor out there on the market as of now. I don't know how good the Tiger Lake will perform, so this is the best out there. And apart from that, this the graphics card is RTX 3060. There were some models that have Ryzen 7 but have 3070 at the same price almost. But I purchased this laptop from my former brother. He's also a computer engineer. So he wants to he mostly was the processor power rather than graphics power. और मार्केट में अवेलेबिलिटी भी का थोड़ा इशू है, तो उस टाइम जो भी सही लगा वो ले लिया। ठीक है, तो आपको किस प्राइस में मिला ये? This was available for 1,51,000. Let's first talk about the build quality. Means, how's the build quality? Are you comfortable? Are you happy with the build quality? Yes, the build quality is super fantastic. There is almost zero screen flex, no, a little bit of flex in the keyboard, but apart from that, it feels solid. It is plastic on the bottom, metal on the top. I guess metal. Most probably, yeah, metal on the top, but plastic on the bottom. Okay. But it doesn't feel like they have cheaped out on materials or anything. It feels solid. Okay, so means if you're spending 1.5 lakh, so build quality won't आपको निराश नहीं करेगी build quality. Build quality में आप निराश नहीं होंगे for sure. Okay. That is good to know, because it's a big amount that people are going to spend on this laptop. Yep. Okay, so what you mentioned कि कीबोर्ड पे हल्का सा फ्लेक्स है, बट डिस्प्ले के ऊपर ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है, राइट? नथिंग, डिस्प्ले पे बिल्कुल जीरो ही मान लो, कुछ भी फ्लेक्स नहीं है। Okay, that is good to know. Okay, let's move ahead and talk about the performance. Means, what kind of user you are or your brother is, and किस तरह की applications आप ज़्यादा यूज़ करते हो। ओवरऑल एक पिक्चर अगर मैं लूँ परफॉर्मेंस की अभी तक की, तो आप क्या बोलना चाहोगे उस केस में? So हम लोग मोस्टली, मेरा ब्रदर अभी भी स्टूडेंट है, so he is a part time gamer, let's say. We are not hardcore gamers who game every day and stuff. Mostly once or twice a week. That's our gaming frequency. But apart from the gaming, my brother uses this mostly for the neural networks and deep learning usage. So the RT cores on RTX are really helpful for him. Sorry, the Tensor cores. Okay. So that kind of user he is. He mostly runs stuff on Anaconda.
You must be aware with the Python environment that are available inside that. So he mostly uses those, RStudio, stuff like that. And if I use it for some data work that I do, then mostly it is Excel. Okay. So that kind of use we have. Okay. So are you aware of the TGP of the GPU? Yes, it is 115 plus 15 dynamic boost, which is like literally उन्होंने पूरा खोल दिया है. 130 is the maximum that I have seen on the market. Legion 5 Pro है जो openly बोलता है कि 130 डायरेक्टली है. उसमें वो ऐसे बोलता नहीं है कि कुछ मतलब इतना बूस्ट है, इतना बेस है, बट ये बोलता जरूर है कि हमारा 115 बेसिक है और 15 हमारा ROG का बूस्ट है. And the boost comes from overclocking it. It is freaking awesome. मैंने अपने यहाँ पे एक नोट करके रखा है. तो इन्होंने क्या कर रखा है कि हाँ, आप CPU ओवरक्लॉक कर सकते हो, आप GPU भी ओवरक्लॉक कर सकते हो, RAM भी ओवरक्लॉक कर सकते हो. That is nice. तो हाँ, तो it is यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि 8 कोर्स ओवरक्लॉक. So ये देख के मतलब दिल को एक अलग टाइप की खुशी होती है. yes, because अगर आपके पास इतनी कस्टमाइजेशन एंड इतनी एक्सेसिबिलिटीज हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी टू स्पेंड दिस मच ऑफ बजट ऑन ए लैपटॉप, राइट? हाँ जी, बट इट्स गुड टू नो. एंड क्या कहते हैं उसे, एंड लीजियन 5 प्रो मार्केट में है इन इंडियन मार्केट में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसका सोचे भी और कब आएगा. मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ. मेरा ब्रदर का क्या है कि वो बोलता है कि मैं अगर गेम खेलता भी हूँ तो मैं वो हाई ग्राफिक्स वाले खेलूंगा, RDR2 हुआ या अपना मेट्रो एक्सोडस या कुछ भी, मतलब उस टाइप के वो गेम खेलता है. उसको ई स्पोर्ट्स सेटल में इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं. जबकि मैं हूँ, मैं हार्डकोर CSGO वाला बंदा हूँ, तो मुझे फ्रेम रेट से ज्यादा प्यार है, तो मुझे मक स्विच चाहिए. ओके, आपको मक स्विच चाहिए. एक चीज मुझे इसमें सबसे गंदी यही लगी कि आई एम पेइंग 1.5 लाख एंड यू आर नॉट गिविंग मी दैट मक स्विच. मतलब वो दिल को चुभता है कि व्हाट आर यू टेकिंग दिस मच मनी फॉर एंड देन नॉट इवन गिविंग मक स्विच. ओके, मींस यू टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द कॉन इन इट. And I think in that case, its display must have connected with the iGPU, integrated GPU, right? Yes, it has I guess FreeSync. So वो अपने उसके Radeon Graphics के थ्रू ही आता है प्रोसेसर के. हालांकि मुझे नहीं लगता कि Ryzen 9 होने की वजह से प्रोसेसर पे इतना फर्क पड़ता होगा. आप iGPU से लेते हो भी तो भी, पर मैंने कुछ बेंचमार्क्स देखे ऑनलाइन, तो वो बोलते हैं कि CSGO जैसे ही टाइटल्स में आपको 40 से 60% तक का फर्क दिख सकता है अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो, क्योंकि वो CPU हैवी गेम है. ओके, बट चूंकि मैंने इस पे कुछ देखा ही नहीं तो आई डोंट नो. बट इस पे मुझे CSGO में 262 FPS आ जाती है. So why should I even bother, right? Okay. Means I have a kind of overall picture of the laptop की कैसी परफॉर्मेंस है. Means I'm pretty sure कि परफॉर्मेंस में ये कहीं भी मार नहीं खाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं खाएगा. इतना तो है, आप पैसा एक बार दे के खरीदोगे तो आपको लिटरली 0% रिग्रेट होगा. इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ. अगर आपका यूज केस मेरे से मैच करता है तो. अगर आपका यूज केस ज्यादा गेमिंग की तरफ है तो बेशक आप 3070 वाले मॉडल्स के साथ जाइए. मतलब यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ कि 1,15,20,000 के करीब देर आर लैपटॉप्स जो आपको 80 वॉट 90 वॉट पे दे रहे हैं. So it's good to spend 30,000 more and get the better build quality, better performance and even पूरा खुला हुआ GPU ले सकते हो आप. Okay. ये तो है. Let's move ahead and talk about the display. Means how's the display? I think it's 72% NTSC and 100% sRGB. Yes, which is almost equal to 100% sRGB, right? Yeah, so, almost. Means how's your experience with the display? How's the brightness and everything? Brightness is very good. If I go it full 100%, then it feels really bright. I'm not sure आप देख पाओगे कि नहीं, but it is super bright. If it is visible, then it is super bright, and refresh rate is freaking 300 Hz. So that is pretty cool. जब आप खेलते हो तो गेमिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा स्मूथ है कि I cannot tell. Okay. I got it. Means that 300 Hz is helping you somewhere, right? Yes. Means well, मतलब 1.5 लाख रुपया खर्चा है यार, इतना कुछ मिल रहा है, सही है. हाँ, okay. सही है. मतलब आपने कभी okay, sorry.
Yeah, I said I don't regret कि Okay. 1.5 का है। हाँ, लगता है थोड़ा कभी कभी कि I paid a little bit more than I should have considering कि मक स्विच नहीं है, but it's okay। आई थिंक मक स्विच एक ऐसा एरिया है जो पहले अवेयरनेस नहीं थी, बट अब अवेयरनेस आ गई है, तो पीपल आने आर लगी। वरीड अबाउट इट। ओके, Yes। मतलब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि एक तो मैंने पूछना है कि आपने डायरेक्ट लाइट में कितना लैपटॉप को यूज किया एंड हाउ द ब्राइटनेस, एंड सेकंड थिंग, हैव यू टेस्ट द स्क्रीन ब्लीडिंग पार्ट? स्क्रीन रीडिंग आई हैव सीन, मेरे अपने लैपटॉप पे, इस पे तो मैंने अभी नहीं देखा नहीं है। ओके नॉट रियली, मतलब मैंने रिव्यूज में देखा है कुछ, बट अपने लैपटॉप पे कभी टेस्ट नहीं किया कुछ। ओके, एंड व्हाट अबाउट द यूजिंग लैपटॉप डायरेक्ट इन डायरेक्ट सनलाइट? haven't done that much, so I don't really know, but एक बार मेरा भाई लेके गया था, गैलरी में वगैरह बैठा था, तो वो आराम से काम कर रहा था, तो it should be okay। ओके, एंड आई थिंक 300 nits है, so it is more than sufficient। I should not have asked this question, but still मैंने पूछ लिया। ओके, मतलब डिस्प्ले का भी अच्छा आइडिया मिल गया मुझे, एंड मतलब पैसा वसूल डिस्प्ले है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। पैसा वसूल डिस्प्ले है। लेट्स मूव अ बिट अहेड एंड talk about a bit of the thermals and gaming performance, although you have added in the performance part, but still if you want to add anything in it you can। हाँ, मतलब let's put it in one place। Okay, so let's start with CPU performance। so मैंने Cinebench पे टेस्ट किया था, तो मल्टी कोर पे 5152 स्कोर आया था एवरेज, तो मार्क किया था, तो एंड सिंगल कोर पे एवरेज 569 आया था, which is freaking awesome। परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पे भी पीछे नहीं है। देन PUBG एक बार मेरा भाई खेल रहा था, एंड ही सडन, मतलब अचानक से उसने नोटिस किया कि भाई मैंने डेडिकेटेड जीपीयू तो ऑफ कर रखा है। ओके, लेकिन उसको पता नहीं चला, मतलब थोड़ा सा अटक रहा था, बट उसने फिर उसको थोड़ी सी ग्राफिक्स कम कर लिया, मतलब अल्ट्रा पे खेल रहा था, थोड़ा अटकने लगा था, वो हाई पे कर लिया उसने 2 सेटिंग नीचे, तो हाई जीपीयू पे भी मक्खन चलने लगा था। ओके, तो इट इज कूल। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे भी आप PUBG खेल सकते हैं आराम से। देन हाँ, अबाउट थर्मल्स एंड टेम्परेचर्स, PUBG में तो एटलीस्ट मैंने कभी भी 77 क्रॉस करते हुए नहीं देखा है मैंने CPU को। CPU 77, ओके, CPU 77 को क्रॉस नहीं किया, और GPU कभी 66 या 65 को उसके आसपास ही था, वो कभी मैंने 68 69 नंबर्स नहीं देखे। okay, एटलीस्ट अल्ट्रा PUBG में। if I'm not wrong, you have written something in front of you from where you are या मैंने दूसरे स्क्रीन पे एक वो टेक्स्ट फाइल बना के रखी है कि क्या क्या बोलना है, तो कुछ चीजें मैंने उस पे लिख रखी है, तो यही है। एंड आपने कभी इसका टर्बो मोड ऐसी वैसी चीजें यूज की है, हाई परफॉर्मेंस मोड या कुछ? हाँ, तो जब हम लोग खेलते हैं तो हम परफॉर्मेंस पे डालते हैं, कभी टर्बो या मैनुअल पे नहीं जाते हैं, क्योंकि मतलब इट इज लाइक जो आप ड्रैगन बॉल में देखते हो ना कि मैंने आई एम होल्डिंग बैक, तो वो थोड़ा फीलिंग आता है कि अगर जरूरत पड़ी तो खोल देंगे पूरा। ओके, तो हमने परफॉर्मेंस मोड पे खेला है, एंड अब तक कहीं पे भी किसी भी टास्क में या किसी भी गेम में कोई भी दिक्कत नहीं है। बैटरी राइट, सो बैटरी में हमने 4 घंटे एक बार काम किया था, एंड उसके बावजूद भी उसकी 45% के आसपास बैटरी बची हुई थी। सो यू कैन सीरियसली 90 वॉट आवर की बैटरी है उसमें। बट हाँ, वो क्या है कि आपको वो करना पड़ता है, इनका जो वो सेंटर है ना, क्या बोलते हैं, आर्मरी क्रेट। तो आर्मरी क्रेट में आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 पे ला सकते हो। देन आप डेडिकेटेड जीपीयू ऑफ कर सकते हो, एंड वही परफॉर्मेंस मोड पे डाल सकते हो बेसिकली उसको, सॉरी जो साइलेंट मोड होता है आर्मरी क्रेट में। तो मतलब आप उसको कम पूरा करके ले जाओगे, और आप अगर नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो तो आराम से आप मतलब ये मान सकते हो कि 8 से 9 घंटे आपका चल जाएगा। मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज नॉनसेंस टू गेम ऑन बैटरी, सो हमने कभी ट्राई भी नहीं किया है, एंड मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हो, आपका स्टूडेंट वाला काम है, या आप कहीं कुछ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, इट शुड बी गुड दैट 7 घंटे तो आप मिनिमम मान के चलो कि चलेगा ही आपका। But yeah, it does support Type-C charging. Okay, it support Type-C charging. Okay, that's good to know. So 100 watt का अगर आप चार्जर लेके लाइट घूमना चाहो, तो बस आप इस लैपटॉप को और उतना लेके निकल सकते हो। That's good to know. और वो एक ही जो Type-C वाला पोर्ट है, वही एक है जो Nvidia से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप HDMI के थ्रू जाओगे या किसी और के थ्रू जाओगे, एक्चुअली डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, लेट मी चेक। हाँ, डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, एक HDMI है और एक Type-C है। अगर आप Type-C से जाओगे तो डायरेक्ट Nvidia से कनेक्ट करोगे, HDMI से जाओगे तो नहीं होगा, वो फिर iGPU के थ्रू है।
Okay, and what about audio quality? ऑडियो क्वालिटी अगर आप मूवी वगैरह देखोगे, अगर आप एक ही बंदे हो तो आराम से मतलब आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज लाउड इनफ फॉर वन पर्सन, और मे बी अगर आप एक दो लोग देख रहे हो तो इजी है, बट ऐसे आप पूरे रूम में नहीं देख सकते। इन टर्म्स ऑफ वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो इट इज गुड। उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपका ऑब्वियसली नहीं आएगा जितना आप अगर हेडफोन्स या ईयरफोन्स ला के देखोगे, but it is good enough. I mean, you can watch movies. Got it. But you cannot game, obviously. Yes, obviously. Okay, and what about keyboard? Is your keyboard perfect as per your taste, and trackpad RGB? Yes, मतलब आप जब टाइप करोगे तो थोड़ा सा मशी फीलिंग आती है, एकदम वो मैकेनिकल वाली क्लिकी वाली फीलिंग है वैसी नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे पास लॉजिटेक का मैकेनिकल कीबोर्ड है तो उसकी मुझे आदत है, तो ये थोड़ा सा मशी लगता है एकदम पूरा। I can understand. बट इसकी जो आरजीबी है एंड जो आरजीबी के इफेक्ट्स देता है आर्मरिक रेट और जो इनका ऑरा सिंक है, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बहुत ब्यूटीफुल आपको आरजीबी मिलेगा। और यहाँ पे नीचे भी एक आरजीबी स्ट्रिप है जो मैंने अभी ऑन की नहीं है, बट ये आप देख रहे हो जो ना सफेद कलर का, इसमें बहुत प्यारी सी आरजीबी लगती है। तो आरजीबी के मामले में आप अगर देखना चाहो तो दिल आपका खुश हो जाएगा बेसिकली। Yeah, well, and I think that LED strip also support Aura Sync because I know Strix series has that. Yes. And I can relate it because even I am using the Asus laptop which is Zephyrus Duo 15, and it has a very beautiful and different patterns that you can apply. Yes. मेरे को भी Zephyrus Duo बहुत प्यारा लगता है because that second screen is there. Yeah. So और इसमें जो पीछे आपकी RGB का जो ये दिखता है ना लोगो, आँख जो होती है इनकी, so that lights up but it doesn't have RGB. That is reserved for Scar 15 only. Okay. तो वो Scar में ही होगा, so वहाँ पे एक जगह आपको लाइट लगेगी but RGB नहीं होगी, Aura Sync नहीं होगा। एप्पल का जैसे कांस्टेंट लाइट लगा रहता है व्हाइट कलर का, वैसे ही लगा रहेगा इसमें। ओके, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंक्लूड करते हैं, टुवर्ड्स एंड चलते हैं। बस कंक्लूजन में बता दो कि डू रिकमेंड दिस लैपटॉप टू आवर सब्सक्राइबर एट दिस प्राइस, कंसिडरिंग ऑल इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। I would, but considering मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि इसका 15 वाला वर्जन है, G15 जो Ryzen 7 के साथ आता है विद सेम ग्राफिक्स, वो 1,26,000 में है। So I would say अगर आपको 25,000 एक्स्ट्रा नहीं खरीद देने हैं just because of those extra 2 inch of screen and because of the Ryzen 9, then you can, I would recommend that you go for that. एक फर्क जरूर है कि ये 17 इंच की वजह से बहुत कूल चलता है, क्योंकि एयर फ्लो एंड एवरीथिंग बहुत बहुत ज्यादा सही चलता है 15 इंच के रिलेटिव। सो बहुत सही है। और एक चीज में एक चीज छोटी सी दिखाना चाहूंगा जो शायद आपको कहीं भी किसी भी वहां पे नहीं मिले वीडियो वगैरह में। अगर आप ये पीछे की वेंट देखो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स टाइप के दिखेंगे, MMVI। कैन यू सी दैट? यस, आई कैन सी दैट। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा इस पे देखा कि ये क्यों, मतलब अक्षर क्यों है यहाँ पे। तो मैंने जाके देखा कि ROG लॉन्च कब हुआ था। जो इनका जो ROG ब्रांड है ना, वो 2006 में लॉन्च हुआ था। एंड MMVI को अगर आप रोमन्स न्यूमरल में कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो उसका मतलब है 2006। तो एक बहुत छोटी सी चीज है जो उन्होंने वहां पे छुपा के रखी है। नॉट मेनी पीपल विल नो दैट, बट ऐसा है। That's a secret. हाँ, that's a secret. हाँ, मतलब आप बोल रहे थे ना कि रेकमेंड करूंगा कि नहीं, तो हाँ, लिक्विड मेटल कूलिंग भी है, ये मैं बताना भूल गया कि CPU पे थर्मल पेस्ट नहीं है, लिक्विड मेटल है। तो गलती से भी इसको खोलना मत कि मैं थर्मल पेस्ट चेंज करूंगा करके, वो वैसे ही रहने दो। एंड इट इज फ्रिकिंग ऑसम। बहुत ठंडा लैपटॉप है। फैन नॉइज अगर आप साइलेंट मोड पे चला रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लैपटॉप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, गेमिंग के टाइम उसका फैन स्पीड आप अगर बढ़ाते हो तो फिर obviously it is quite loud, but you can game if you have headphones on. Yes. Okay ji, thank you very much. All right, bhai. Thank you. And I appreciate your work, your hard work along with your job. It is I mean, commendable. Thank you very much. Thank you. Have a great evening. Yeah, you too. Bye bye.
सो दोस्तों आई होप कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि लैपटॉप कैसा है एंड ट्रस्ट मी जितना मेरे को कॉन्वर्जेशन से समझ आया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप जो आप इस समय ले सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने इसका प्राइस चेक किया अराउंड 1,40,000 के करीब भी वेरी करता रहता है, तो लैपटॉप का प्राइस वेरी करता रहता है। एंड अभी 1-2 दिन में सेल भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप इजीली प्लान कर सकते हो इस लैपटॉप को लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।